थैंक यू जी। मैं कैफे म्यूचुअल, सबसे पहले मैं सिंपल खत्री जी का, मैडम अनीता सुर्वे, पूरे दिशाद जी का और पूरे कैफे म्यूचुअल टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ बात करने के लिए, आप लोगों के सामने आने के लिए। एंड आई ऑल्सो थैंक ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग स्पेयर्ड योर वैल्यूएबल टाइम एंड come to this conclave, this idea fest of Cafe Mutual. I have also prepared a presentation, small presentation, which I try to show all of you. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा. But I am not a veteran of mutual fund. This is what I tell this disclaimer कि that I am not I know very much about insurance, life insurance, since for the last 35-36 years I have been a part of LIC. और अगर यहाँ की जर्नी की बात हो म्यूचुअल फंड की, तो दिस इज आई एम कंप्लीटिंग अराउंड 4 years इन म्यूचुअल फंड. पहले मैं 2 साल एज चीफ मार्केटिंग ऑफिसर था इन 2019 to 2021 एंड फाइनली फ्रॉम अप्रैल 2023 आई वाज पोस्टेड एज ED कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड फ्रॉम 1st of January 2024 एज MD and CEO. So this is all about my small journey of mutual fund. And if there are any mistakes, shortcomings, please ignore me, forgive me. But the purpose of this discussion, this presentation will be, as given by Prem Khatri ji and Madam Anita Surve, is to talk about role of mutual fund distributors in wealth creation. And I'll try to justify that. And I also request you to kindly pay your attention and see what best we can carry together. If you can carry even 1 or 2 thoughts from my presentation, I will feel that I have my hard work, my efforts for making this presentation will bear a lot of fruit and significance. So this is the context which I will be running through during this presentation. First of all, what are the industry standards? My earlier speakers have also seen, they have spoken about the industry trends. I'll also try to be short and quick so that I can finish up within the 15-20 minutes time which has been allotted to me. Second is about the market dynamics, what are the changes which are happening in the market. And finally coming to the role of mutual fund distributor in wealth creation. तो सबसे पहले आज की जो ताज़ा खबर है या अभी की जो ताज़ा खबर है उसी पे बात करते हैं. और आप सभी लोग इससे 100% वाकिफ़ हैं कि मार्केट की जो वोलेटिलिटी है इट इज़ एक्सट्रीम. अगर आप देख सकते हैं चाहे निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, कोई भी मेजर जो भी मेजर इंडाइसेस हैं, दे हैव फॉलन कंसिडरेबली इन द लास्ट 5 to 6 months ऑफ टाइम. और लेकिन जो इन्वेस्ट और ये बीच में होते रहती है, जो मार्केट की जो वोलेटिलिटी है दिस कीप्स ऑन हैपनिंग. जैसा कि आप लोग सभी लोग बहुत साल से होंगे, 15-20 साल से होंगे, यू मे बी डेफिनेटली अवेयर ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी. And you must be understanding the importance of such dips also, because market volatility and downturns are they are not our I call you, they are not our enemy, they are our friend and ally, because that is a time when we can invest more, we will be getting more units because of rupee cost averaging, and that will ultimately boost our wealth creation after a certain point of time. So इसकी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है. और वही मैंने यहाँ पे भी जो है इस स्लाइड में भी कैप्चर किया है कि मार्केट साइकिल्स आर अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ए जेन्युइन इन्वेस्टर. जो जेन्युइन इन्वेस्टर है उसके लिए मार्केट साइकिल्स आर रियली बूम टाइम wherein they can invest more and more money, they can put more and more money into their folios and try to acquire lot of positivity, incremental growth when the market recovers. दूसरी चीज है कि ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ द ट्रम्प the tariff decisions announcements which are made by President Donald Trump at United States. अगर आप देखेंगे if you will be able to see जो in totality अगर आप देखेंगे जो इंडिया की जो टैरिफ रेट है it is 7.7% on an average on totality basis. और अगर अमेरिका की देखेंगे जो सेकेंड कॉलम है it is 2.8. So the differential, the tariff differential is hardly 4.9%. तो मैं आपको इस स्लाइड के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर हो, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जो ऊपर के जो रेड थ्रेड्स हैं, जो रेड से लिखा हुआ है, वहाँ भले ही टैरिफ की डिफरेंशियल थोड़ी सी हाई है,
लेकिन जैसे ही हम एम्बर या ब्लू में जब आते हैं तब देखते हैं कि जो टैरिफ की डिफरेंशियल है वो बहुत कम हो जाती है, इट इज बिकमिंग मिनिमम, इनफैक्ट इट इज नेगेटिव इन केस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो ओर्स मिनरल्स एंड पेट्रोलियम अगर आप देखेंगे, इंडिया की जो टैरिफ रेट है 2.3 है, अमेरिका की 6.7 है, तो ओवरऑल इट इज नेगेटिव बाय -4.4, विच मीन्स कि टैरिफ का जो ड्रामा प्रेसिडेंट ट्रंप का है, इट इज जस्ट अ ड्रामा, इट इज शोमैनशिप और कुछ भी नहीं है, एंड आवर मार्केट शुड नॉट बी really affected because of this tariff differential. This is what I wanted to highlight all of you. और अगर totality weighted average देखेंगे, it's only the difference is minuscule, only 4.9%. So this is what I wanted to highlight all of you, that all of you are extremely capable, knowledgeable mutual fund distributors, and you are able to understand this and take it forward to your clients also. जो आपके investors हैं क्लाइंट्स हैं, उनको जरूर उनको बताइए कि जो टैरिफ की जो अमेरिका की जो ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग के देश में उसकी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाली है। ये जरूर है कि वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में बिकॉज ऑफ द परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स, मेनी रिटेल इन्वेस्टर्स पर्टिकुलरली, बट जो लॉन्ग टर्म रहेंगे एंड दोज हु विल स्टिक टू द फंडामेंटल्स ऑफ द इक्विटी मार्केट, दे विल बी डेफिनेटली गेनिंग लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम दिस, स्टिकिंग टू the respective investments. So friends, the final line, stay patient, stay invested, and as always we are here to navigate these changes together. हमारी म्यूचुअल फंड है LIC म्यूचुअल फंड, we are going to support all of you. आप सभी लोगों से मेरी यही हार्दिक अपील और रिक्वेस्ट होगी, प्लीज हैव फुल फेथ अपॉन अस, और आपके इन्वेस्टर्स को भी, क्लाइंट्स को भी, सबको ये फेथ दीजिए कि अगर LIC म्यूचुअल फंड है आपके साथ हर समय, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये देखिए, एक और डेटा है, प्रीवियस स्पीकर्स ने भी जरूर शेयर किया होगा कि जो एवरेज AUM की जो इनफ्लो है आप देख सकते हैं, फ्रॉम 7,47,000 करोड़ 2010 में मोर देन 9 टाइम्स ग्रो होके 68 लाख करोड़ हो चुकी है, और अगर हम 2021 से देखेंगे सिर्फ 3 साल में डबल होगी, 32 लाख करोड़ थी और उससे भी ज्यादा आज के डेट में 68 लाख करोड़ की AUM, एवरेज AUM हो चुकी है। अगर हम T30 और B30 एसेट क्लासेस का भी डिफरेंसेस देखेंगे, डिफरेंस क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं कि T30 में जो है मैक्सिमम कंसंट्रेशन है आप सभी की, लेकिन जो लोग छोटे शहर से आए हैं उनको भी हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जो छोटे शहर में जो SIP हो रही है उसकी नंबर भी फैंटास्टिक है। SIP नंबर अगर सभी को, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, इट इज मोर देन 10 करोड़ SIP नंबर्स, और उसमें से 54% B30 जो बियॉन्ड 30 स्मॉलर टाउन्स है, Tier 2 Tier 3 सिटीज, वहां से हो रही है SIP के गुड नंबर ऑफ SIPs वॉल्यूम से। इसी तरह अगर मार्केट शेयर की बात करें AUM के बेसिस पे, तो मुंबई 27.2% है, दिल्ली 12.2, जो मेट्रोज है, बट नेचुरल है कि वहाँ पे कंसंट्रेशन अर्बन पॉपुलेशन का, हाई इनकम नेटवर्क का, इन लोगों का ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और इसीलिए जो है जो AUM की भी बात हो या वेल्थ की भी जो बात हो, तो वो जो बड़े सिटीज है वहाँ पे ज़्यादा होगी। अब SIP AUM की बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि पिछले 5-6 साल में 2.66 करोड़ थी ये 2019 में, और आज के डेट में ये मोर देन 13 लाख करोड़, फ्रॉम 2.66 लाख करोड़, जो कि हार्डली अराउंड 8-10% होता था टोटल AUM का, नाउ इट इज अराउंड 20% ऑफ द टोटल AUM विद 13.2 लाख करोड़ ऑफ SIP AUM। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। सेकेंडली उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंस की बात है कि जो इक्विटी की जो AUM है, इट इज मोर देन 80% फॉर द कंटिन्यूअस फॉर द लास्ट 6 years। इवन जो अभी जनवरी की डेटा आई है उसमें इट इज मोर देन 86%। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इक्विटी तो है ही है, लेकिन एसेट एलोकेशन ये सब की इम्पोर्टेंस बहुत रहेगी। और हमारी प्रीवियस स्पीकर भी जो है चैटर्जी साहब भी आप सबसे यही कह रहे थे कि वी शुड हैव ए बैलेंस्ड पोर्टफोलियो विद ऑल आवर इन्वेस्टर्स, कि आप डेट में भी इन्वेस्ट करें, पैसिव में भी करिए, और इक्विटी में भी जो है सो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जहाँ तक SIP कंट्रीब्यूशन की बात है, आप ये भी देख सकते हैं फ्रॉम 4,095 करोड़
at the rate of 26%, more than 26%. It has grown to 26,000 crores, 26,400 crores, which is extremely good. मतलब किसी भी इंडस्ट्री के लिए और खास करके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क अचीवमेंट। अब मार्केट डायनामिक्स की बात करूं मैं आप सभी से, सबसे जो इम्पोर्टेंस की बात है कि क्या होने वाला है आगे आने वाले समय में, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारी एयूएम की बात करें जीडीपी रेशियो, तो इट इज हार्डली 18% ऑफ द वर्ल्ड। जो कंट्री की जो जीडीपी है उसका 18%, 18.2% है। ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 5-6 साल में फ्रॉम FY19 to FY24 की बात करें तो मोर देन 5%, 5.6% की ग्रोथ है in the AUM to GDP रेशियो। However, अगर वर्ल्ड का एवरेज देखेंगे तो 74% है। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो अपॉर्चुनिटी की जो केक की जो साइज है इट इज ट्रेमेंडस, ह्यूज। और हम लोग सभी जानते हैं कि आज के समय में सबसे बड़ी इकोनॉमी वर्ल्ड की कोई है तो वो इंडिया होने वाली है। जितने भी कंट्रीज हैं, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर की बात सुनिए, कहीं भी देखिएगा, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, रिन्यूएबल एनर्जी, किसी भी सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्लांट, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज यहीं पे लगाई जा रही है। और जितने भी मल्टीनेशनल्स हैं वो भले ही काम यहाँ नहीं करे, अगर बंद करके भी चले गए थे, अगर आपने फोर्ड का सुना होगा, सितंबर 2021 में वो वापस चले गए थे चेन्नई से अपनी पूरी प्लांट और अपनी फैक्ट्री बंद करके, लेकिन सितंबर 2024 में फिर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम फिर से अपनी इंडियन फैक्ट्री को रीओपन करना चाहते हैं और हम यहाँ पे जो है वर्ल्ड के लिए हम एक्सपोर्ट करेंगे। विच मीन्स कि जितने भी बड़े कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वो सभी यहाँ पे अपनी फैक्ट्री प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो बट नेचुरल है, इससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, इनकम की भी जो है फ्लो होगी, बहुत अच्छी होगी। और इन सभी कारणों के कारण जो है जो जीडीपी की जो है अभी 18% ये नेचुरली 40, 50%, 70% तक ग्रो कर सकती है। एक डेटा और मैं आप सबसे शेयर करूंगा मिडिल क्लास का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी का देखे होंगे तो जो मिडिल क्लास है 44 to 45 करोड़ है, विच इज हार्डली 13%, लेकिन अगर 2030 तक जाएंगे इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल बी 38%। और 2047 जो विकसित भारत की बात है, जब 100 इयर्स पूरी होगी, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मिडिल क्लास विल बी रीचिंग 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। The size opportunity is huge. This is what I wanted to explain to all of you. PAN number भी देखेंगे, within last 5-6 years it has 2.5 times it has increased from 2.1 crore it has grown to 5.33 crores। पिछले 5-6 साल में 2.5 times grow हुआ, and this is nothing in comparison to जो PAN और आधार का लिंकेज है, it is hardly 60 crores. There it is 60 crores. We have hardly covered 8.88%. which is much less than what it should have been। तो अभी भी जो है सो बहुत बड़ा सेगमेंट है those who are not investing into mutual fund, and it is our responsibility jointly that we must try to enroll them, impel them and give them SIP etc. so that they can be part of the wealth creation। ये एक और डेटा आपके सामने है। और सबसे जो बड़ी बात है, अगर आप यहाँ देखेंगे जो शेयर ऑफ म्यूचुअल फंड है ये कंसिस्टेंट है 8.4% के आसपास, लेकिन जिस तरह से इस बजट में अनाउंसमेंट की गई है, बजट 2025 में जो डिडक्शन लेवल है 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया और गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ फॉरगो कर दी है, which may be going to spending also, हायर स्पेंडिंग भी होगी और हायर सेविंग्स भी होगी। तो यहाँ पे मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो नेट फाइनेंशियल सेविंग्स है हाउस होल्ड्स की वो भी बढ़ेगी और उसमें हमको भी अपना शेयर निकालना है। आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी भी उस शेयर को जो है निकाल सकते हैं। एक अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रैंड अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए यहाँ निकल के आती है। रिटेल इन्वेस्टर्स भी, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर्स अभी 27.9% हो गई है पिछले 5 साल में। और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम्स, अभी तरुण योजना भी लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स ये सब किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में लिटरेसी अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ेगी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सेविंग्स करने के लिए, और ऐसे में आपकी नीड और बढ़ सकती है और आपको जो है
मौका मिलेगा कि आप नए नए कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड के साथ जोड़ सकते हैं। अब क्या रोल है एमएफडीज का, ये भी, इस पे भी छोटी सी बात करेंगे। वैसे आप लोग सभी एक्सपर्ट हैं, फिर भी मैं बस एक ब्रश अप कर दूंगा। सबसे पहले और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। हो सकता है कि आप इमीडिएटली नहीं कर पाए, आप जो है पहला एसआईपी रजिस्टर करके लेके आ जाए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है अगले 6 महीने में, साल भर में जरूर बैठ के फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ताकि आप एक अच्छी रिलेशनशिप भी बिल्ड कर पाएंगे और एक अच्छी प्लान सजेस्ट करके भी उस क्लाइंट को, कस्टमर को दे पाएंगे, और जिसमें कि आपकी आगे की फ्यूचर की जो पूरी जर्नी है वो भी बनी रहेगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से होगी कि काइंडली फाइनेंशियल प्लानिंग को इग्नोर नहीं करें। अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से समय लेके जाइए, और नए क्लाइंट्स को जब ऑनबोर्ड करिएगा उस समय भी जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है इन्फ्लेशन। सभी लोग, आप लोग जानते हैं, कोई नई चीज मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है कि हम सभी भारतवासियों को जो है, जो हमारी इनकम है उसको वो आधी कर देती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इन्फ्लेशन को हर समय हम नजर में रखें। आप लोग, बहुत लोग LIC एजेंसी भी करते होंगे, मैं जानता हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि लाइफ इंश्योरेंस LIC पॉलिसी भी जरूर सजेस्ट करिए, दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर समय स्टॉक मार्केट कभी भी यूनिडायरेक्शनल एक तरफ नहीं चढ़ेगी, मौका आएगा हर समय ऊपर नीचे होते रहेगी। ऐसे में प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम लाइफ इंश्योरेंस कवर भी, LIC पॉलिसी भी सजेस्ट करें। और फाइनली मेडिक्लेम भी जो है सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार भी बीमार पड़ गए तो पूरी जो हमारी सेविंग्स है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिक्लेम कवर भी साथ में जरूर जोड़ा जाए। जो भी चीज़ है वो 360 डिग्री रखिए, होलिस्टिक प्लान होनी चाहिए। केवल एक चीज़ पे फोकस नहीं करिए। अगर आप खाने बैठे हैं तो खाली आप रसगुल्ला या चिकन नहीं खा सकते हैं, आपको खाने में हर चीज़ आपकी होनी चाहिए, दाल चावल सब्जी सलाद सब कुछ होनी चाहिए। इसी तरह आपको जो है सो एक होलिस्टिक प्लान बना के अपने क्लाइंट्स को देना चाहिए। एंड फाइनली कस्टमर की नीड को देखते हुए, उसके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए आपको प्लानिंग करनी है। इमोशंस को हैंडल करना है, बहुत जरूरी है कि इमोशंस जो है उसको आप हर समय कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि डाउनटर्न्स इक्विटी मार्केट में हो सकता है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होगी आपके पास तो रिटर्न ऊपर नीचे बन सकती है। ऐसे में अगर हम इमोशंस को थोड़ा हैंडल कर लिए तो वो क्लाइंट हमारे पास बहुत लंबे समय तक रह सकता है। यहाँ मैं आपको एक डेटा देना चाहूँगा, जो डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं उनके 5 साल की जो SIP है सिर्फ 5% ही कंटिन्यू करती है, 5%। लेकिन जो MFDs के द्वारा होता है इट इज मोर देन 15%, मतलब मोर देन 3 टाइम्स। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस है, आपकी पावर है आपके पास। सो यू मस्ट वैल्यू दिस एंड ट्राई टू इंश्योर टू हैंडल द इमोशंस ऑफ द बिहेवियर। जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है उसको जरूर हैंडल करें। फिर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम हर चीज़ का ध्यान रखें, इक्विटी का भी रखें, गोल्ड का भी रखें, डेट का भी इन्वेस्टमेंट जो है वो सजेस्ट करते रहें। मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कई लोग जो हैं जो मल्टी एसेट की एलोकेशन खुद नहीं कर पाते हैं। मैं, अगर आप मुझे कहेंगे कि आप जो है सो डेट में भी इतना % इन्वेस्ट करिए, इतना गोल्ड में भी करिए, इतना सिल्वर में करिए, ये नहीं पॉसिबल है। लेकिन बहुत सारे एमसीज के पास ऐसे फंड होंगे, बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसमें एक प्रोफेशनल है, एक फंड मैनेजर है जो उसको मैनेज कर रहे हैं। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी सभी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये आप लेके चलिए, जरूर रखिए, इससे उसको स्टेबिलिटी मिलेगी और एक भरोसा बनेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। टेक्नोलॉजी की लिवरेज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। LIC म्यूचुअल फंड ने पार्टनर ऐप अपना लॉन्च किया है। आप लोग के पास आपकी अपनी ऐप या कोई ना कोई आपके पास सॉफ्टवेयर होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको जरूर अडॉप्ट करिए, उससे आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। एंड फाइनली जो क्लाइंट्स की जो पोर्टफोलियो है उसको प्लीज़ बहुत मॉनिटर करना जो है सो इम्पोर्टेंट है कि उसको टाइम टू टाइम आप मॉनिटर करते रहिए, ताकि अगर उनकी जो फाइनेंशियल प्लान है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो वेल्थ क्रिएशन का, वो टाइम टू टाइम आप उसको पूरा कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था। ये बायर्स डू बिजनेस विथ यू, नॉट विथ योर कंपनी एंड नॉट विथ योर टेक्नोलॉजी, ये मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। अगर आपकी कोई भी सजेशन हो तो आप हमको ceo@licmf.com पे आप अपनी सजेशंस भेज सकते हैं।
और फाइनली देखिए, अंत होने से पहले मैं 4 चीज़ के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा जो मेरी एक्सपीरियंस है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं कहना चाहूँगा, फाइंड योर पर्पस। अगर आप केवल पैसा कमाने के लिए आए हैं तो आप एक लंबे समय तक इस सेगमेंट में नहीं रह सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक पर्पस जो है ना, ग्रेटर गुड के लिए, सोसाइटी के लिए, वो आपको सोचनी बहुत बहुत जरूरी है कि मुझे क्या करना है। लोग, क्योंकि दिस इज अ नोबल बिजनेस। अगर टीचिंग के बाद कोई दूसरी बिजनेस है जो कि अच्छी मानी जा सकती है टीचिंग के बाद, तो वो है सेविंग्स की, इंश्योरेंस की, म्यूचुअल फंड की, मेडिक्लेम की। ये बात आपको समझना चाहिए। आप शायद समझते भी होंगे, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ काफ़ी आप लोग पुराने और एक्सपीरियंस लग रहे हैं, लेकिन ये बात सभी को समझना चाहिए कि ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और यहाँ हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। दूसरी चीज़, स्ट्रेस। अगर आपके पास कोई स्ट्रेस है तो पहले स्ट्रेस को अटैक करिए ताकि आपकी स्ट्रेस खत्म हो। अगर आपके पास स्ट्रेस रहेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आप एक्सीलेंस को सोच नहीं सकते। तीसरी चीज़ है फियर ऑफ फेलियर। आप सोचेंगे कि मैं जो है सो जब भी उतरूँ 100 बैट्समैन हूँ तो 100 बनाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छे अच्छे बैट्समैन भी 0 पे आउट होते हैं। कई बार सेल्स मार्केटिंग में अगर आप 10 क्लाइंट के पास गए, 10 के 10 आपको म्यूचुअल फंड की SIP या लमसम नहीं देंगे। हो सकता है 5-7 लोग आपको मना कर दें। तो यू शुड हैव द करेज टू एक्सेप्ट फियर ऑफ फेलियर। एंड फाइनली यू शुड नॉट हैव लैक ऑफ कन्विक्शन। अगर आपके पास कन्विक्शन की लैक है, बिलीफ की, कॉन्फिडेंस की, then you are not a successful distributor. You cannot be a successful salesperson. So you should have conviction of what you are selling. आप क्या बेच रहे हैं, क्या लेके आए हैं, क्या प्रोपोजिशन आपका जो है सो क्लाइंट के लिए है, उसके फैमिली के लिए है, उसके छोटे छोटे बच्चों के लिए, उसके बीवी के लिए है, उसके माँ बाप के लिए क्या प्रोपोजिशन लेके आए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ सजेस्ट करिए with full conviction, with full confidence and belief. That's all. Thank you.